Hello students. In the previous lecture we were discussing about the data transfer operations, and in data transfer operations we have discussed some instructions. We know that based on the functionality, the 8085 instruction set has been divided into 5 categories: data transfer operations, arithmetic operations, logical operations, branching operations, machine control operations. So we were discussing about data transfer operations in the previous lecture. So the data transfer operations, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था? MVI R, 8 bit, LXI RP, 16 bit, move RD, RS, LDA 16 bit, 16 bit address actually, and STA 16 bit address, out 8 bit port address, in 8 bit port address. So these are the data transfer operations which we discussed in the previous lecture. Now the some more data transfer instructions are, which we will see in this lecture. The instruction is move R, M. The instruction is move R, M here. And इसका मतलब क्या है move R, M का? It means that the meaning of instruction is copy the data byte into register from memory specified by the address in the HL register pair. तो ये जो है R जो लिखा हुआ है, दिस इज डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन कैन बी एनी वन ऑफ द रजिस्टर, दैट इज B, C, D, E, H, L और एक्यूमुलेटर. और M क्या है? M यहाँ पर मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मेमोरी से डेटा को ट्रांसफर करना है रजिस्टर, किसी रजिस्टर में. ओके इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग हुआ कि मेमोरी से डेटा को रजिस्टर में ट्रांसफर करना है. बट वी नो दैट मेमोरी इज ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स. तो कौन से रजिस्टर से डेटा को ट्रांसफर करना है वो रजिस्टर तो यहाँ मेंशन है नहीं. तो जब M इंडिकेट कर रहा है कि मेमोरी, तो इस तरह से इस केस में जो एड्रेस जो होल्ड करता है जो रजिस्टर पेयर, उसको बोलते हैं HL रजिस्टर पेयर. HL रजिस्टर पेयर, वी नो दैट HL रजिस्टर पेयर इज ऑल्सो द मेमोरी पॉइंटर. तो इस इंस्ट्रक्शन का जो पूरा मीनिंग हुआ ये हुआ कि कॉपी द डेटा बाइट फ्रॉम द रजिस्टर in the memory, from the register of the memory whose address is mentioned in the HL register pair to another register. Okay, or we can also say that copy the data byte into register from memory whose address is specified by the HL register pair. Okay, copy or transfer or load the data byte from memory to register, and the address of memory is specified by the HL register pair. This is the meaning of instruction move R, M. For example, move B, M. तो suppose कि प्रोसेसर में we know that B is a general purpose register that can store the 8 bit data. तो यहाँ पर सपोज कि रजिस्टर B है और we know that there are 6 general purpose registers in 8085: B, C, D, E and HL. So B is one of them, and HL can also be used as a register pair. तो H और L जो रजिस्टर पेयर है उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 16 बिट का जो कंटेंट है वो 5000 है. 5000. तो ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर. और इधर एज्यूम करते हैं कि दिस इज द मेमोरी ब्लॉक, और मेमोरी में एक लोकेशन कंसिडर करते हैं जिसका एड्रेस है 5000. We are doing this just to understand
what is going to happen after execution of this instruction move b, m. तो जब ये इंस्ट्रक्शन मूव b, m एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, तो मेमोरी में जो डेटा है वो सपोज यहाँ पर डेटा है 70, तो मेमोरी में जो डेटा है वो बी रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा, और मेमोरी में कौन से लोकेशन पे वो डेटा है, वो लोकेशन जो है वो एचएल पेयर कंसिस्ट करेगा, वो लोकेशन एचएल पेयर एड्रेस करता है, क्योंकि एचएल पेयर मेमोरी पॉइंटर की तरह भी काम करता है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है, इसका मतलब ये हुआ मेमोरी में कौन सा लोकेशन, वो लोकेशन जिसे एचएल पेयर एड्रेस कर रहा है। तो एचएल पेयर किसको एड्रेस कर रहा है, 5000 को। तो 5000 पर जो भी डेटा है यानी 70H, that data will be copied into the register which is mentioned in the instruction which is B register। अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद B रजिस्टर में क्या डेटा आ जाएगा, 70H। तो इस तरह से ये दिस इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव B, M। ओके, अब इसके अगर लेंथ की बात करें तो दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, मूव R, M इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। एंड इसमें एड्रेसिंग मोड कौन सा है, तो एड्रेसिंग मोड में को समझने के लिए हमने 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स को पढ़ा था। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एड्रेसिंग मोड इसमें यूज हुआ है, पहले तो हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करें कि इसमें डेटा इस इंस्ट्रक्शन में किस तरह से एक्सेस किया जा रहा है, किस तरह से स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो क्या डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, नहीं। क्या डेटा का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, नहीं। तो डेटा का एड्रेस यहाँ पर किसी अनदर रजिस्टर पेयर में इस डेटा जो डेटा है उसको किस तरह से स्पेसिफाई किया जा रहा है। एम का मतलब ये हुआ कि एम जो है मेमोरी, और मेमोरी का वो एड्रेस कौन पॉइंट आउट कर रहा है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, किसी रजिस्टर पेयर में जो कि एचएल है, एचएल इज द मेमोरी पॉइंटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव एम, आर। तो ये इंस्ट्रक्शन जस्ट मूव आर, एम का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो मूव एम, आर का मीनिंग क्या होगा, मूव और कॉपी और ट्रांसफर the content of a register into memory and whose address is specified by the HL register pair. Okay, move or copy or transfer the content of register into memory whose address is specified by the HL register pair। यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, copy the data byte from the register into memory specified by address in HL register pair actually। okay, तो यहाँ पर R जो लिखा है इसका मतलब है रजिस्टर, एंड दैट रजिस्टर कैन बी एनी ऑफ द रजिस्टर्स B, C, D, E, H, L और एक्यूमुलेटर। इनमें से कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है R की जगह पे। एग्जाम्पल में यहाँ में हमने एग्जाम्पल में कंसिडर किया है मूव M, C, मूव M, C। तो इसका मीनिंग क्या हुआ इस एग्जाम्पल का, कि मूव और कॉपी द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर C into memory and whose address is specified by the HL register pair। For example, let us consider another example in which in microprocessor we know that there is a C register also which is a general purpose register, and let us consider that register C contains or consists 90H। यहाँ पर 90 डेटा बाइट है, सॉरी 90 डेटा बाइट है। ओके, एंड एचएल पेयर हम मान लेते हैं कि एचएल पेयर में 5000 है, इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन मूव M, C will be executed, then what will happen, the content of C will be copied into the memory at the location whose address is mentioned by the HL register pair, that is 5000। तो यहाँ पर C में क्या कंटेंट है, 90 है। ये मेमोरी में कॉपी होगा कौन से लोकेशन पर, जो उस लोकेशन पर जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में है। तो HL रजिस्टर पेयर में कौन सा एड्रेस है, 5000। तो जब ये इंस्ट्रक्शन मूव M, C एग्जीक्यूट होगा तो इस एग्जांपल में मेमोरी के 5000H पे क्या डेटा आ जाएगा, 90। ओके, दैट 90 विल बी कॉपीड इनटू द 5000 लोकेशन इन द मेमोरी। तो इस तरह से ये मीनिंग हुआ इस इंस्ट्रक्शन का। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन,
मूव एम कॉम आर, मूव एम कॉम आर का लेंथ क्या होगा, तो दिस विल ऑल्सो बी ऑफ 1 बाइट लेंथ। एंड इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, इसमें भी जिस भी डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो 90H है जो कि रजिस्टर सी में है, इसको कॉपी करना है मेमोरी में, तो मेमोरी में कॉपी करना है, लेकिन मेमोरी में डायरेक्टली उसका एड्रेस तो दिया हुआ नहीं है, तो इस तरह से इसमें भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, क्योंकि memory means that the address of memory is indicated or addressed by the HL register pair. So in the instruction move m, r, इसमें भी indirect addressing mode होगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDAX, RP, LDAX, RP। यहाँ पर RP is representing the register pair। कौन सा रजिस्टर पेयर, रजिस्टर पेयर कोई भी हो सकता है, BC, DE या HL। वी नो दैट देयर आर 3 रजिस्टर पेयर्स इन द 8085, so any one of the register pairs can be used in the example BC, DE and HL। In this example we have assumed BC register pair। यहाँ पर हमने LDAXB B रजिस्टर पेयर को BC रजिस्टर पेयर को अज्यूम किया है। तो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDAX RP। द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज copy data byte into accumulator from the memory specified by the address in register pair। Copy data byte into accumulator from the memory specified by the address in register pair। For example, let us consider some values to understand this instruction। So if we suppose this block is representing the microprocessor 8085 and यहाँ पर जो रजिस्टर पेयर है उसमें हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो रजिस्टर पेयर है ये BC रजिस्टर पेयर है, BC रजिस्टर पेयर। एंड यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक्यूमुलेटर है, क्योंकि एग्जाम्पल में यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने BC रजिस्टर पेयर को अज्यूम किया है। तो मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉपी डेटा बाइट इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस इन रजिस्टर पेयर। तो कॉपी डेटा बाइट इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी, इट मीन्स दैट यहाँ पर हमें मेमोरी को भी एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी एंड यहाँ पर हमने अगर BC रजिस्टर पेयर में अगर हम यहाँ पे 2000 वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर BC रजिस्टर पेयर जो है वो मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज किया जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर दिस लोकेशन 2000H इज इन द मेमोरी, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो डेटा बाइट स्टोर्ड है पहले से वो 77 है, 77 इन हेक्साडेसिमल। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा LDAXB, इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी से डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी करना, लेकिन मेमोरी में कौन सी लोकेशन से कॉपी करना, तो उसका एड्रेस उस रजिस्टर पेयर में मेंशन होगा जो कि इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। कॉपी द डेटा बाइट इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी whose address is specified by the register pair। ओके, तो जब ये इंस्ट्रक्शन LDAX एग्जीक्यूट होगा तो BC रजिस्टर पेयर में यहाँ पर X is representing that the operation is being performed using the register pair, so C is not mentioned here, but यहाँ पर सिर्फ B मेंशन किया गया, बट इट इज अंडरस्टूड दैट यहाँ पर BC रजिस्टर पेयर है। तो BC रजिस्टर पेयर में 2000 एड्रेस है, 2000 एक्चुअली कंटेंट है, तो दिस BC रजिस्टर पेयर इज ट्रीटेड एज मेमोरी पॉइंटर इन दिस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया हुआ है वो 2000 एड्रेस में जो भी कंटेंट है दैट इज 77H। तो ये 77 जो हेक्साडेसिमल में बाइट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन LDAXB, the content of accumulator will be 77H।
In this way, this instruction is executed. Okay. Okay. तो LDXB का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉपी डेटा बाइट इनटू accumulator from the memory specified by the address in register pair. ठीक है. तो अब बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन कितने लेंथ का है. तो LDXRP, the length of this instruction is 1 byte. And again, what is the addressing mode in this instruction? तो इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा एड्रेसिंग मोड है? यहाँ पर देखते हैं कि जो डेटा है वो कैसे डायरेक्टली मतलब डेटा इज डायरेक्टली गिवन और द एड्रेस ऑफ डेटा इज गिवन, किस तरह से डेटा स्पेसिफाई किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डेटा जहाँ पे मतलब जहाँ से कॉपी करना है उस डेटा का वो डेटा डायरेक्टली गिवन नहीं है और उसका एड्रेस भी गिवन नहीं है, बल्कि उस डेटा का जो एड्रेस है वो जिस रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है वो रजिस्टर पेयर यहाँ पे मेंशन किया गया है इस इंस्ट्रक्शन में. इट मीन्स दैट द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड this instruction इस इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज हुआ है. ओके. देन STAXRP, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज STAXRP. तो STAXRP जो काम यहाँ पे LDXRP इंस्ट्रक्शन से हो रहा था उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा STAXRP में. इट मीन्स दैट कॉपी डेटा बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी specified by the address in register pair. Copy data byte from accumulator into memory whose address is specified by the register pair. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो assume किया है STAXD. We know that RP is representing the register pair and register pair can be any one of them, DE, BC और HL register pair. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने DE register pair को कंसिडर किया है. So let us assume that here the register pair is DE. Okay. And assume the content of DE register pair is 4000H. And let us assume that the memory location of this memory location of memory is 4000. ये memory location का address है 4000H. So when this instruction STAX will be executed, then the content of accumulator will be copied into the memory at the location which is addressed by the DE register pair. तो यहाँ पे DE register pair में जो भी एड्रेस जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पर मेमोरी के उस लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर होगा accumulator में जो भी कंटेंट है that is 77H. It means that after execution of the instruction STAXD, in this example, the content of memory location 4000H will be 77H. तो इस तरह से ये STAXD instruction execute होता है. Now, what will be the length of the instruction STAXRP? The length of the instruction will be again 1 byte, and which addressing mode is used in this instruction? Again, indirect addressing mode, because the data is not given directly, but the address of the data, the register pair is mentioned in the instruction, which is responsible for addressing the memory location. So the indirect addressing will be indirect addressing mode will be in this instruction. So these are the data transfer. These are some example of data transfer instructions. Now the next instructions are HLT and NOP. Actually, these two instructions are belonging to the category, the fifth functional category, that is machine control operations. Machine control operations. The two instructions HLT and NOP. These two instructions are belonging to the machine control operations category. At this time, it is important to discuss about these instructions because these two instructions are necessary for the completion of a program. So let us discuss these two instructions, HLT and NOP. HLT, it means halt. This instruction HLT means halt,
and this is 1 byte instruction. After execution of this instruction, the processor stops executing the instruction, whatever instruction which was executed by the processor. Processor stops executing and enters into wait state. Okay, and in the meaning of wait state is the address bus and the data bus are placed in high impedance state and no register contents are affected. This is the meaning of halt. This is 1 byte instruction, and when this instruction is executed, the processor stops the executing and enters into wait state. Meaning of wait state is that the address bus and data bus are placed in the high impedance state. Okay, and no register contents are affected after execution of this instruction, HLT or halt. Then the next instruction is NOP, which means no operation. This is also 1 byte instruction, and as its name, after execution of this instruction, no operation is performed. Okay, so what is happening if no operation is performed? Then what is happening? So generally it is used to increase the processing time, or it is substitute in the place of an instruction. When an error occurs in a program and an instruction needs to be eliminated, it is more convenient to substitute NOP than to reassemble the whole program. So when the NOP instruction is executed, then no operation is performed, but the processing time is increased. Okay. So these were the examples. These were the examples of data transfer operations which we discussed. Then we discussed these two additional instructions which are related to the machine control operations, and now we are going to see some example. So the first example is load the accumulator with data byte 82H and save the data in register B. इस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है? तो इस इंस्ट्रक्शन में करना ये है कि एक्यूमुलेटर जो कि 8 बिट का रजिस्टर है या 1 बाइट का रजिस्टर है, इस एक्यूमुलेटर में कौन सी डेटा बाइट को लोड करना है? 82H को लोड करना है. तो पहला काम तो ये हो गया कि एक्यूमुलेटर में 82H जो डेटा बाइट है उसको लोड करना है. फिर दूसरा काम क्या है? एंड सेव द डेटा इन रजिस्टर बी. अब एक्यूमुलेटर में लोड करने के बाद जो भी डेटा है 82H उसको रजिस्टर बी में भी सेव करना है. ये दो काम करने हैं. तो इनके लिए हमें कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना होगा? सॉरी, this is the first task to be performed and this is the second task to be performed. तो पहला टास्क ये है कि एक्यूमुलेटर में 82H डेटा को लोड करना है. तो यहाँ पर डेटा हमें पता है कि किस डेटा को लोड करना है, वो डेटा हमें डायरेक्टली पता है. तो कौन सा इंस्ट्रक्शन हम यूज कर सकते हैं? We can use the immediate addressing mode instruction. We can use the instruction which is having the immediate addressing mode. तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो हमने अभी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में यहाँ पढ़ा हुआ है? देखिए, जिसमें हम एक्यूमुलेटर में 8 बिट डेटा को डायरेक्टली लोड कर सकते हैं. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, क्या इससे काम चल सकता है? यहाँ पे MVI R, 8 बिट. अगर हम यहाँ R की जगह एक्यूमुलेटर का यूज़ करें और 8 बिट डेटा की जगह जो डेटा मेंशन है उसको यूज़ करें, तो उससे क्या होगा? that 8 bit data will be loaded in the accumulator register. तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए MVI A, 82H. What will happen after execution of this instruction? This instruction this instruction is helpful in completing the first task, that is 82H will be loaded into the accumulator. तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या हो गया accumulator का कंटेंट? The content of accumulator will be 82H after the execution of instruction
MVI A,82H. Now the second task is save the data in register B. मीन्स कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसको रजिस्टर बी में सेव करना है. तो इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब हमें डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना है या मूव करना है. तो यहाँ पर देखिए दो रजिस्टर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का ये इंस्ट्रक्शन है मूव RD, RS. अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है दैट इज यूज्ड एट द फर्स्ट प्लेस एंड द सोर्स रजिस्टर इज यूज्ड एट द सेकंड प्लेस. तो मूव RD, RS मतलब कॉपी और मूव द कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर. तो यहाँ पर हमारा सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, तो सोर्स रजिस्टर एक्यूमुलेटर होगा क्योंकि एक्यूमुलेटर से कॉपी करना है और कहाँ पे स्टोर करना है या सेव करना है बी में. तो डेस्टिनेशन रजिस्टर जो होगा वो बी रजिस्टर होगा. तो मूव B, A, दिस विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो इस एग्जांपल में हमें करना क्या था, इस एग्जांपल में करना ये था कि लोड द एक्यूमुलेटर विद द डेटा बाइट 82H. पहले एक्यूमुलेटर में 82H डेटा बाइट को लोड करना है जो कि हमने इस इंस्ट्रक्शन से कंप्लीट किया है MVI A,82H and then save that data in the register B. तो move B, A. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, इसको देख सकते हैं MVI A,82H and move B, A. So this is the first example. In this way we can complete this task with the help of the instructions. So the next example is write instructions to read 8 on or off switches connected to the input port with address 00H and turn on the devices connected to the output port with the address 01H as shown in the figure. इस फिगर में यहाँ पर इनपुट पोर्ट दिया हुआ है जिसका एड्रेस हेक्साडेसिमल में 00H है और यहाँ पर आउटपुट पोर्ट है जिसका एड्रेस हेक्साडेसिमल में 01H है. करना क्या है इसमें, करना ये है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखना है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को लिखना है जिससे कि इन स्विचेस को, जो 8 ऑन ऑफ स्विचेस हैं ये, इनको रीड किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट पोर्ट से जो डिफरेंट प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं उसको कंट्रोल किया जा सके. राइट इंस्ट्रक्शंस टू रीड 8 ऑन ऑफ स्विचेस connected to the input port with the address 00H and turn on the devices connected to the output port with the address 01H as shown in the figure. तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को लिखना है जिससे कि इन स्विचेस को रीड, इन स्विच की पोजीशंस को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट पोर्ट पे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको ऑन या ऑफ मतलब ऑन या ऑफ किया जा सके, मीन्स कंट्रोल किया जा सके. तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 8 स्विचेस हैं S0 से लेकर S7 तक, these switches are connected to the data bus with the help of tri-state buffer and यहाँ पर आउटपुट पोर्ट पे डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं. तो हम यहाँ पर स्विचेस पे जो भी इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, स्विच की जो भी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट पर डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो ऑन या ऑफ होंगे. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो स्विचेस हैं उनको या तो 5 वोल्ट से कनेक्ट किया जा सकता है, तो 0 से कनेक्ट, ग्राउंड से कनेक्ट किया जा सकता है. तो पहला टास्क क्या होगा, पहला टास्क तो ये होगा कि जो स्विचेस की जो भी पोजीशंस है उनको माइक्रो प्रोसेसर रीड कर सके. जब माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड कर पाएगा तभी वो उसके अकॉर्डिंगली उस डेटा को आउटपुट पोर्ट को सेंड कर पाएगा जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो ऑन या ऑफ हो पाएंगी. तो फर्स्ट टास्क इज टू रीड द डेटा विच इज प्रोवाइडेड थ्रू दी स्विचेस. तो इन स्विचेस की हेल्प से स्विचेस क्या है, इनपुट डिवाइस है. तो इनपुट डिवाइस से डेटा को माइक्रो प्रोसेसर में रीड करने का क्या इंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है? देखिए यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस, ये क्या करता है, दिस इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट्स द डेटा बाइट फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड प्लेसेस इट इन द एक्यूमुलेटर. तो हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं इन
इन के बाद क्या लगाना है, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, सॉरी यहाँ हाँ यहाँ पर इनके बाद क्या लिखना है, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस। तो 8 बिट पोर्ट एड्रेस क्या है, इनपुट पोर्ट का एड्रेस क्या है, 00H, तो 00, तो इंस्ट्रक्शन जो पहला इंस्ट्रक्शन इनपुट पोर्ट से डेटा को रीड करने का होगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, दिस इज इन 00H। तो जब ये इंस्ट्रक्शन इन 00H एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, तो जब इन 00H एग्जीक्यूट होगा तो इन स्विचेस पर जो भी पोजीशन, इन स्विच की जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा बाइट है वो पहले तो ये ट्राई स्टेट बफर जो यहाँ यूज हुआ है वो इनेबल हो जाएगा, एंड जो भी यहाँ पर डेटा बाइट है स्विच की पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या डेटा बाइट होगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं 0100 मीन्स 4 इन हेक्साडेसिमल और 1111 मीन्स F, तो 4F जो डेटा बाइट है वो डेटा बाइट पहले जब ये इन 00H इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ट्राई स्टेट बफर इनेबल होगा, देन दिस 4F डेटा which is according to the switch positions, that data will be available on the data bus and then it will be copied into the accumulator में कॉपी हो जाएगा। ओके तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रीडिंग एंड इनपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट को किस तरह से रीड करना है, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिंग एंड इनपुट पोर्ट। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक जो भी स्विच की पोजीशंस हैं वो एक्यूमुलेटर में स्विच की पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो भी डेटा बाइट है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो चुकी है। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका राइट इंस्ट्रक्शंस टू रीड 8 ऑन ऑफ स्विचेस कनेक्टेड टू द इनपुट पोर्ट विथ द एड्रेस 00H, ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, एंड टर्न ऑन द डिवाइसेस connected to the output port with the address 01H। अब आउटपुट पोर्ट जिसका एड्रेस 01H है उस पर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको ऑन या ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू द स्विच पोजीशंस। तो फॉर एग्जांपल S7, the switch S7 will control this switch air conditioner and the switch S6 will control this the हीटर। ओके इस तरह से डिफरेंट जो स्विचेस हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करेंगे। तो अब स्विच पोजीशंस के अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल करना है। इसका मतलब है कि जो भी डेटा बाइट है स्विच पोजीशंस का उसको हमने एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रखा है। अब एक्यूमुलेटर से हमें उसे उसे आउटपुट पोर्ट पर सेंड करना है। तो विच इंस्ट्रक्शन विल बी यूज्ड, वी कैन सी हियर दैट दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज सेंड डेटा बाइट from accumulator to the output device out 8 bit port address। तो यहाँ पर हम out 8 bit port address इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। द सेकेंड इंस्ट्रक्शन विल बी out 8 bit port address, और वो 8 bit port address किसका 8 bit port address, तो आउटपुट पोर्ट का। आउटपुट पोर्ट का एड्रेस 8 bit port address कितना है, 01H। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, out 8 bit port address means out 01H। when this instruction will be executed then the data which is in the accumulator now will be available at the data bus, और output port enable होगा और जो भी और जो डेटा है वो लैच हो जाएगी आउटपुट पोर्ट पे, और उसके अकॉर्डिंगली मीन्स कि इस 4F के अकॉर्डिंगली जो भी डिवाइसेस हैं वो कंट्रोल होंगे, ऑन या ऑफ होंगे। तो इस तरह से ये जो स्विचेस हैं 8 स्विचेस उन पे जो भी इनपुट प्रोवाइड, अच्छा ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ये जो आउट 01H है और इसके बाद जो ये कंट्रोल हो रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस, इसको कहते हैं राइटिंग टू द आउटपुट पोर्ट, इसको राइट ऑपरेशन कहते हैं, आउटपुट राइट ऑपरेशन। तो इससे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट 8 स्विचेस हैं उनका जो भी स्विच पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट पोर्ट पे डिफरेंट प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं उनको उनको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इस एग्जांपल में हमने ये देखा। ठीक है, तो इसके दो इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हो गए, इन 00H, आउट 00H, देन HLT halt। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं और उनके कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हमने देखा उसे। देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द second functional category, that is arithmetic operations. Thank you.